आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। उसका नाम है रिलेशनशिप्स। अब इसको हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। एक, टू सॉल्व द स्पेसिफिक रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड सेकेंड, टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप्स। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कुछ 4 to 5 केस स्टडीज। उसके बाद थोड़ा सा हम थेरोटिकल पार्ट जानेंगे अबाउट द रिलेशनशिप डायरेक्शन, एंड देन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप खुद आपके घर में देख सकते हो, और इफ़ देयर इज़ इम्बैलेंस यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। लेकिन थ्रू द केस स्टडीज़ ये प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, कैसे ऑकर होते हैं, कैसे इसका परिणाम होता है फ्रॉम 3 months to 25 years of experience, you can understand some of my own experiences and some of my own clients. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम केस नंबर 1. Now case number 1 is my own personal experience which I'm sharing with you from the based upon which I have given the title of this video also. In my house we are total 3 people. My husband, me and I have a small daughter. अब लड़कियों के बारे में तो आप जानते ही हो, लड़कियां कैसे हमेशा पापा 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 करती रहती है, पापा की परी होती है, पापा की लाडली होती है. The same case was with me also. So what I did when we planned this house has been done interiors of our house, the one which we are staying at present. This house is completely as per the Vastu rules. Okay, I designed it myself. So what I did, I just simply added one thing in the direction of relationship. Okay, that is family photographs. So what happened, within just 3 to 4 months, I observed a very drastic change in her behavior. The emotional component of her, or her behavior, or her we can say that attachment or प्यार, तो वो अब दोनों का भी equal है. Now I'm very happy that we both are equal as compared to her emotional bonding, her behavior, her choices and her priorities also. Now let's talk about case number 2. Now case number 2 is one of my client, or actually they are my close relatives only. So what happened, they called me one day, they had some Vastu related problems, and they called me and they said me that please check our Vastu, there may be, if there is any solution please guide us. ठीक है. So I went to their house. So उस घर में हस्बैंड और वाइफ 2 जन और उनका एक बेटा करंटली रहते थे. ठीक है. तो जो वो बेटा था वो अनमैरिड था, बट ही इज़ वर्किंग and he's earning money, but it was not good enough also so that he can stay on a rental basis outside. So because he is unmarried, so they also wanted he to stay with him, obviously because he was working locally only, not like too far away. ठीक है. So क्या था ना, जिस मोमेंट पे, जिस कंडीशन में मैं उनके घर वास्तु करने गई, तब उस वक्त उस मोमेंट पे ना उनका बेटा घर छोड़ के चला गया था. एंड दे हैड सम अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बट घर छोड़ के बेटा गया है, दैट वॉज नॉट द प्रॉब्लम फॉर देम. इट हैड हैपेंड प्रीवियसली ऑल्सो, बिकॉज उनके झगड़े और जो कॉमन प्रॉब्लम्स थे घर में, उसकी वजह से उनका बेटा घर छोड़ के चला जाता था और वापस 2 से 3 महीने में आ जाता था. सो दैट वॉज नॉट देयर वास्तु इशू. देयर वास्तु इशूज वे समथिंग डिफरेंट. So along with their major problems which I solved, I also did one thing. I put their photos in the direction of relationship. ठीक है. सो मैंने उन दोनों के कपल्स के, दैट इज़ हस्बैंड वाइफ के, एक फ़ोटो उधर प्लांट किया. उसके साथ उनके बेटे का भी एक सिंगल फ़ोटो था, वो प्लांट किया. उसके ऊपर मैंने, क्योंकि उनका साथ में कोई फ़ोटो नहीं था, या फिर एक जस्ट एक इमोशन के लिए, मैंने उसके ऊपर एक बर्ड का कपल और उनका बेबी बर्ड के साथ ऐसे 3 जन का फ़ोटो वहाँ पे प्लांट किया. So what happened in the next course, I told them कि maybe there will be some changes which you can observe in next 15 days. So let me know after 15 days what happened. उसके बाद डे 14 को मुझे उनके माँ का फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन आया, और वो बोले कि हमारा बेटा घर आ गया है. एंड वो तो हमेशा ही आता था, बट इस वक्त कुछ अलग चीज़ ये हुई कि उसे उसके किए का पछतावा था. उसे समझ गया कि उसकी क्या गलती हुई. ही एग्रीड दैट
he will not do the same mistake again. And then he cried also, and उसने अपने मम्मी पापा की माफ़ी भी मांगी, which had happened for the first time. जो बेटा अपने माँ से ठीक से बात भी नहीं करता था, उसने पैर छूकर अपने माँ की माफ़ी मांगी, अपने माता पिता को प्रॉमिस किया माफ़ी मांग के कि मैं वापस ऐसे नहीं करूँगा, और उसके बाद से आज तक काफ़ी साल हो चुके हैं, वैसे वापस सिचुएशन कभी आई नहीं, ठीक है. बट दैट टाइम दैट मदर, शी कॉल्ड मी, शी क्राइड एंड शी सेड थैंक यू, कि आई थिंक दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस वास्तु रेमेडी ओनली, ठीक है. इट वॉज सच अ सिंपल रेमेडी, सिर्फ 10 रुपए के कलर फोटोज मैंने 3 वहाँ पे लगाए थे, एंड देन दिस वॉज द चेंज. नाउ लेट्स सी केस नंबर 3. अभी केस नंबर 3 जो है, दैट वॉज वन ऑफ द स्टडी विच आई स्टडीड ड्यूरिंग माई कोर्स, सो आई जस्ट शेयर दैट विथ यू. सो what happened that there was a case which was given to us, in which a couple came with some different vastu related problems, ठीक है. But what they said that they had married before, and then they got divorced in their previous house in the beginning days, and then they went to their own house, and after few days they thought that we did a mistake, and they remarried, ठीक है. So that was the case, and that time that vastu consultant tried to find out that what was the issue, that why it so happened, why it happened that they had to take a divorce, which was not for them, because they got remarried. That means divorce was not there in their destiny, that has happened because of some issues or negativity maybe. So what had happened in that previous house, and when he checked the plans, floor plans and house plan of that house, there was a toilet in the direction of relationship, ठीक है. सो अभी टॉयलेट जैसे क्या काम करता है, टॉयलेट इज डिस्पोजिंग ऑफ वॉट एवर इज नॉट रिक्वायर्ड. सो इफ द टॉयलेट इज देयर इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, इट विल ऑल्सो गिव द इफेक्ट ऑफ डिस्पोजल इन relationships. So that was case number 3. So in this case, the toilet needs to be balanced. Case number 4 is also one of my old client. उनके घर में क्या हुआ था, उनके घर में रिलेशनशिप की डायरेक्शन जो थी ना, उसमें गैस का चूल्हा था, ठीक है. उनका किचन इस तरह था कि जो सेंटर से लेके वेस्ट डायरेक्शन का किचन था, एंड क्योंकि चूल्हा जो था वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, दैट इज रिलेशनशिप के डायरेक्शन से चूल्हा जाता था, ठीक है. तो चूल्हा एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में, उस जोन में था, ठीक है. उसकी वजह से उनके बीच में काफ़ी सारे झगड़े बढ़ गए थे. घर का इंटीरियर्स किया और उस नए घर में वो शिफ्ट हुए, तब उन्होंने जब गैस कनेक्शन पाइप अगेन लगाया आफ्टर इंटीरियर्स, एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग दैट चूल्हा. उसके बाद अराउंड कुछ 3 महीने के बाद का ये इंसिडेंस है कि उनके झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. एंड देन शी कॉल्ड मी कि इतने सालों से तो सब सही चल रहा था, पर अभी अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया है. आई balanced their chula, and then she said, and then I took follow up after 1 month, and then she said now the situation is much better, hopefully अब और कुछ झगड़े ना हो, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, बट उसके बाद तो कभी फ़ोन आया नहीं. And the last case is the case number 5, which I will be sharing with you, is also one of my close relative. उनके घर में कोई वास्तु उपाय नहीं किया था. This is just my observation, because this family is one of my, in our close circle with our family, my before marriage family, we were in close circle. So I have observed what had happened in that house for the last 25 years. So उनके घर का नक्शा, जैसे एक बार मैं विजिट करने गई थी, एंड देन आई सॉ द नक्शा ऑल्सो. सो उनके घर में क्या था ना, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कट थी, ठीक है. एज कम्पेयर टू अदर डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, वॉज कट. इट वॉज हाफ ओनली. उसके पीछे का जो एरिया था ना, वो एरिया घर में था ही नहीं. तो उस घर में पिछले 20 से 25 साल जो मैंने देखा, वो ये था कि उनके घर में हस्बैंड एंड वाइफ का कभी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था. दे वर नॉट लिविंग हैप्पीली, दे वर लिविंग फॉर सम टाइम जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है. उनके बीच में कभी वो प्यार वापस नहीं आया जो बहुत बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ था. और ये घर में आने के बाद तो ऑब्वियसली जितना मैं जानती हूँ, तो इस घर के बारे में ही मैं जानती हूँ, तो कभी भी उसमें कोई सुधार नहीं था. एंड व्हाट हैड हैपेंड इज आफ्टर
around 23 years, they got separated and they started living separately in two different houses. They didn't take divorce because for the children only, but they were not used to stay together. इसमें कुछ करने जैसा तो नहीं था, बट इसमें हम लोग वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो कट थी उसे एक्सटेंशन थेरेपी अगर दी गई होती शुरू में तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती थी. तो इन सच केसेस व्हाट वी डू द एक्सटेंशन ट्रीटमेंट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और जो भी कट डायरेक्शन है उसके लिए एक्सटेंशन थेरेपी अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, तो वो करनी चाहिए थी. नाउ briefly I'll be telling about some theoretical part about साउथ वेस्ट डायरेक्शन. सो सबसे पहले डायरेक्शन कौन सी है रिलेशनशिप की, इज द साउथ वेस्ट, दैट इज नैऋत्य दिशा. उसके एट्रीब्यूट्स काफ़ी सारे होते हैं, बट रिलेशनशिप इज जस्ट वन ऑफ द एट्रीब्यूट. ठीक है. सो इफ देर इज imbalances in this direction, they can cause problems in relationship. As we have seen in our different cases, there can be imbalances in the form of colors also, in the form of shapes also. If there is a toilet also, that needs to be balanced. If there is a kitchen gas stove also, then it needs to be balanced if it is giving problems. And if the direction is cut or if it is extended, that also can give बैड इफेक्ट्स. ठीक है. बिकॉज ऑल डायरेक्शंस इक्वली बैलेंस होने बहुत ज़रूरी है घर में. अगर कोई डायरेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो उसे कट थेरेपी देनी होती है, अगर कोई बहुत कट है तो उसे एक्सटेंशन थेरेपी देनी होती है. जैसे हमारे शरीर में सारे कंपोनेंट्स है, इवन नॉर्मल हमारा बीपी ले लीजिए. अगर बीपी ज़्यादा है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, अगर बीपी कम है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं. बीमारियाँ दोनों भी है, इलाज दोनों के लिए भी करना पड़ता है. सिमिलरली वी टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ थायराइड. अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, अगर थायराइड हार्मोन कम है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं. सिम्टम्स दोनों के अलग है, ट्रीटमेंट दोनों के लिए लेनी पड़ती है, डिसीज दोनों भी है. ठीक है. सिमिलरली इन आवर हाउस ऑल्सो all the directions and panchatatvas has to be balanced correctly. If any direction is too long, any direction is too short, that has to be balanced. ठीक है. सो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट, दैट इज पृथ्वी तत्व की ये दिशा है. पृथ्वी तत्व के जैसे दो एलिमेंट्स फ्रेंडली है और दो दुश्मन है. सो सिर्फ हमें कौन से दुश्मन या एनिमीज है पृथ्वी तत्व के वही याद रखने हैं. वो है पानी तत्व और हवा तत्व. जैसे पानी अगर बह रहा है तो पानी के सामने अगर ऊंची कोई बड़ी चट्टान आके खड़ी हो जाए तो पानी रुक जाता है. ठीक है. इसलिए पानी तत्व, पृथ्वी तत्व जो है ना वो पानी तत्वों को मारता है, इसलिए पानी तत्व और पृथ्वी तत्व की एक दूसरे के साथ जमती नहीं है. और सिमिलरली हवा तत्व के प्रतीक क्या है, पेड़ पौधे. पेड़ पौधे ज़मीन में उनको उनके रूट्स डीप में जाते हैं और वो पृथ्वी का आधार लेके ऊपर खड़े रहते हैं, उनका सपोर्ट लेके खड़े रहते हैं, पर वो उनकी जगह लेते हैं, वो उन्हें चीरते हैं. ठीक है. इसीलिए हवा तत्व पृथ्वी तत्व को मारता है, इसीलिए पृथ्वी तत्व हवा तत्व के साथ भी फ्रेंडली नहीं है. ठीक है. इसीलिए अगर आप इस दिशा में, दैट इज़ रिलेशनशिप की दिशा में, आपने अगर पानी तत्व से रिलेटेड कोई चीज़ें रखी हो, जैसे फ्री फ्लोइंग वाटर आर्टिफैक्ट रखा हो, आपने फिश टैंक रखा हो या पानी का कोई मटका रखा हो, ठीक है, तो वो इम्बैलेंस कॉज कर सकता है. और अगर आपने हवा तत्व से रिलेटेड अगर पेड़ पौधे रखे हो, अगर आपने उस वहाँ पे अगर उस डायरेक्शन में अगर थोड़ी सी भी खिड़की आती है और आपने खिड़की के बाहर समझो कि आपकी गैलरी हो या फिर आपका ग्रिल हो जहाँ पे आपने पेड़ पौधे रखे हैं, तो वो भी वास्तु में इफ़ेक्ट दे सकते हैं. ठीक है. क्योंकि वो भी अपना नेट यूजेबल ही एरिया है. ऐसा नहीं कि वास्तु मतलब दीवारों तक ही है, दीवारों के बाहर का एरिया जो हम यूज़ करते हैं ना उसका भी वास्तु में इफ़ेक्ट आता है. ऐसे नहीं है कि दीवार ख़त्म हो गई और वास्तु का ख़त्म हो गया, कंपोनेंट या वास्तु का इफेक्ट ख़त्म हो गया. जो भी हमारा नेट यूजेबल स्पेस है वो सब कुछ वास्तु में इफेक्ट करता है. ठीक है. सो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए. अगर वो चीज़ें वहाँ पे है तो उसे आप चेंज कर दीजिए पोजीशन, और आपके रिलेशनशिप्स में आप एक अलग चेंज और बदलाव महसूस करोगे. हमारे चैनल को पसंद करने के लिए धन्यवाद.